Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 6th of December 2021, Monday. Inspiration of the day is there is always light if only we are brave enough to see it, if only we are brave enough to be it. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 3. Service sector credit growth still show despite relaxation. Bank credit to service sector has remained slow lane in financial year 22 despite of the COVID related restrictions has been eased out. So if we talk about the growth in service sector, more specifically credit growth in service sector, that is how much credit service sector organizations are taking for their working capital, for their capital expenditure. So as per the bank credit data from Reserve Bank of India, the credit growth rate to the service sector has remained in the slow lane in the complete financial year, that is financial year 22. However, the COVID related restrictions is now being relaxed into many or different states, or almost in every state, whether it is aviation industry, tourism, or any other service sector. But as per the recent data that has been published by RBI, fresh bank loan to service industries such as trade, non-banking financial companies, commercial real estate, transporters, and aviation are up 2.9% year on year basis in April and October 21. That is just above 2.7% in the very same period of financial year 21. It means financial calendar year 20. So in financial year 22 is just seeing a marginal increase into the fresh bank loans to the service industries, more specifically trade, NBFCs, commercial real estate, transportation, and aviation. If we talk about the outstanding bank credit to the service sector, it has inched up to 26 trillion on October 22, 21 against the 25.3 trillion a year ago. So in comparison to the last year, the outstanding bank credit to service inched up only 26 trillion. Previous year it was 25.3. So in this case we are also seeing a marginal increase, and the figure was 26.5 trillion at the end of March this year. So in comparison to the previous month, this outstanding bank credit to service sector has decreased. So as per the data comparison, that clearly indicate that loan repayment have exceeded the fresh disbursement during April to October time period. It means service sector loans repayment has increased, but fresh loan allocation has decreased for this financial year, more specifically from April to October 2021 quarters. और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वी टॉक अबाउट द एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें सर्विस सेक्टर में, तो जस्ट टेक अ वाटरफॉल पैटर्न. वाटरफॉल पैटर्न मीन्स कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो डिमांड है वो इमीडिएटली पिकअप कर लेती है. टर्न अराउंड इन द डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्रियल segment is a recent phenomena, 1 or 2 month low, and broad based credit expansion is expected in the next 2 or 3 quarter. और उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी 2 से 3 महीने पहले ही, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2 से 3 महीने पहले ही क्रेडिट ग्रोथ रेट स्टार्ट हुई है, तो उस साइकिल के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट पिकअप करते करते आगे आने वाले 2 से 3 और क्वार्टर लग जाएंगे. तो जो डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक क्रेडिट का डेटा जो भी रिसेंटली आरबीआई ने पब्लिश किया है, इसके अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर अभी स्पीड से ग्रो करना शुरू नहीं हुआ है. अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्रेडिट ग्रोथ रेट से हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी सेक्टर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा. इन जनरल नोशन, इन जनरल पालांस ये माना जाता है कि अगर क्रेडिट
स्पेसिफिकली बैंक क्रेडिट रेट बढ़ रहा है किसी सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर हो, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोन ले रहे हैं। लोन किस किस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं? या तो वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लॉन्ग टर्म लोन लेंगे। और बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, इंडस्ट्रीज कब लोन लेती हैं? जब उनके यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही होती है, जब उनको पता होता है कि वो जो वो प्रोड्यूस करेंगे वो मार्केट में बिक जाएगा। डेफिनेटली इन्वेंट्री बनाने के लिए तो कोई भी लोन नहीं लेता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी लोन नहीं लेती है। तो अगर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री सेक्टर में लोन बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड है इकोनॉमी में, और सर्विस, पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। और इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में सर्विस सेक्टर में जो बैंक क्रेडिट है उसमें फॉल देखने को मिला है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेश डिसबर्समेंट हुए हैं वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट से कम हुए हैं। तो सीधा क्लियर इंडिकेशन ये है कि भी सर्विस सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, दे आर नॉट टेकिंग लोन, क्योंकि उनको अभी आगे आने वाले टाइम में उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं दिख रही, उनकी सर्विसेज की डिमांड नहीं दिख रही है, तो वो अभी लोन नहीं ले रहे। तो एक्सपर्ट का कहना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो है, वो अभी रिसेंटली टर्न अराउंड हुआ है, तो ये एक्सपेंशन सर्विस सेक्टर में आते आते 2 से 3 क्वार्टर लग जाएंगे। द इम्पैक्ट ऑफ डिवास्टेशन कॉज्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक ऑन सर्विस लाइक हॉस्पिटैलिटी still lingers, and the sector will take longer to see an uptick in credit expansion. So this is the growth rate of service sector since financial year 2009 to financial year 2022, and we can see clearly this blue bar indicates the bank credit to service sector, and this red line, trend line, indicates the credit growth rate. And we can easily see that this, during this period of time, financial year 21 to financial year 22, the credit growth rate in terms of percentage has been stagnant or marginally increased or even decreased as per the recent data. तो अभी सर्विस सेक्टर को पिकअप होने में टाइम लगेगा. Now let us look into the article number 2 that is given on page number 4. Government makes largest payout for slashing oil bond dues. Center's tax collection this year have come in handy for making roughly 20,000 crore payments against the oil bond dues as well as interest dues. तो 20,000 करोड़ का पेमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, एंड दिस विल लोअर द सेंटर्स इंटरेस्ट आउट गो ऑन ऑयल बॉन्ड्स ओवर टू द कमिंग ईयर्स. And as per the data, this is the largest payment that central government is going to do for और डू अगेंस्ट ऑयल बॉन्ड ड्यूज एज वेल एज इंटरेस्ट ड्यू. तो जो भी ऑयल को लेकर के ड्यूज़ है, क्रूड ऑयल को लेकर के ड्यूज़ है, उसकी हिस्ट्री में जो भी पेमेंट गवर्नमेंट ने की है अभी तक का, ये 20,000 करोड़ इज़ द लार्जेस्ट अमाउंट till date into any fiscal year that government is going or giving for this purpose. तो इसमें कौन सी न्यूज़ है? वाई दिस पर्टिकुलर न्यूज़ हैज़ कवर्ड बाय बिजनेस स्टैंडर्ड. तो रेगुलरली जो गवर्नमेंट है वो पे करती है फाइनेंशियल ईयर में जो ऑयल बॉन्ड्स होते हैं उनके ड्यूज़. यहाँ पर जो चिंताजनक विषय है वो ये है कि जब ये बॉन्ड इशू किए गए थे, these bond were issued when interest rate were high. तो जब ये बॉन्ड इशू किए गए थे उस समय इंटरेस्ट रेट हाई था, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर टू आरटीआई. कहीं पब्लिश नहीं हुई है, एक आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाली गई है. द इंटरेस्ट रेट ऑन दीज बॉन्ड रेंजेस बिटवीन 6.3% to 8.4%. And center collection from excise duty, however, are well in excess of what it has to pay out for the bond. तो जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का, स्पेसिफिकली एक्साइज ड्यूटी से जो कलेक्शन हुआ है वो जो बॉन्ड में जो अमाउंट पे करना है उससे कई ज़्यादा है. सो इट गॉट अप्रॉक्सीमेटली 72,000 crore ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ द करंट फिजिकल ईयर, एंड एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 21 वर अप्रॉक्सीमेटली 3.72 ट्रिलियन, द हाईएस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2015. तो अगर 2015 के बाद से ये सबसे बड़ा डेटा है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन.
और जितना कलेक्शन हुआ है उसमें से 41% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को दे देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना बच रहा है गवर्नमेंट के पास में, जितना रिमेन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 59% अप्रॉक्सीमेटली, वो भी अभी जो गवर्नमेंट को ऑयल ड्यूज़ और ऑयल बॉन्ड्स और इंटरेस्ट के जो ड्यूज़ पे करने हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। And according to the status paper on government debt, that is financial year 2018 and 19 data, liability on account of these special security had increased significantly between financial year 2005 to 6 and 2008 to 9. तो अगर कहा जाए कि जो लोन था, जो गवर्नमेंट ऑयल ड्यूज ऑयल बॉन्ड का जो ड्यूज पे करने वाली है, दैट वाज एक्चुअली टेकन बाय द यूपीए गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट फिलहाल के लिए पे करने वाली है। दैट हाई डेट वाज ड्राइवन बाय द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट ऑप्टिंग टू कीप फ्यूल प्राइसेस लोअर इन द कंट्री। जब यूपीए के टाइम में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट ने ये लोन लिया था जिससे कि ऑयल के प्राइस को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो अब वो जो ऑयल बॉन्ड उस समय इशू किए गए थे, नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीपे फॉर दोज ऑयल बॉन्ड्स। तो इंटरेस्ट रेट उस समय हाई था, और इस समय हम सभी को पता है बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है, जो यील्ड रेट है, दैट इज़ वेरी हाई। ऑल्दो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखें तो बॉन्ड ऑयल बॉन्ड रेट वर वेरी, इंटरेस्ट रेट वो वेरी हाई। तो ये थोड़ा सा इशू है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने ये टाइम क्यों चूज़ किया इस पर्टिकुलर ऑयल बॉन्ड और इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए। एंड दिस इज़ द क्लासिकल एग्जाम्पल। लिखा जाता है तभी भी कि गवर्नमेंट्स को जो लॉन्ग टर्म लोन है वो कम लेने चाहिए, जिससे कि जो आगे आने वाली गवर्नमेंट है उसके ऑपरेशन में कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उनकी पॉलिसीज़ में कहीं भी रिस्ट्रिक्शन हो। तो ये 2005 से 2009 के बीच में जो लिया गया लोन था, या जो ऑयल बॉन्ड इशू किए थे गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर टू सब्सिडाइज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मिनिमाइज द क्रूड ऑयल प्राइसेस, उसका पेमेंट अब गवर्नमेंट करने जा रही है। इट मीन्स उस पर्टिकुलर यूपीए गवर्नमेंट के जो लोन थे उसका बर्डन 2 से 3 टर्म्स के बाद जो गवर्नमेंट आई है उस पर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द क्रूड ऑयल बॉन्ड ड्यूज प्रिंसिपल ड्यू एज on year end, and this is the excise duty collection, and we can see that this has increased significantly because of the improvement into the economic activity, and उसकी वजह से जो भी रिमेनिंग पार्ट बच रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसको यूज़ करना चाहती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डेट बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। And this is the target that previous government has decided for repaying their oil bonds interest and dues. तो financial year 2009 और 10 में this principal was approximately 1,44,000, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 आते आते गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको ज़ीरो कर दिया जाए। एंड दिस इज़ द टैक्स कलेक्शन, एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन मोर स्पेसिफिकली। सो एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन टॉप ऑयल बॉन्ड्स आउटगो। तो किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन पे किया है गवर्नमेंट ने या यूज़ किया है इन ऑर्डर टू रीपे द ऑयल बॉन्ड्स एंड interest. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6. WTO negotiation on services regulation concluded. So on last Thursday, 67 member countries of World Trade Organization has or have concluded their negotiation. किस बात पर negotiation हो रहा था? On service domestic regulation, that in short we call it SDR, service domestic regulation. और उसका purpose क्या था? The purpose of this negotiation was to make it easier for the foreign service provider to access, understand and follow the procedure of getting authorization or license or operating in the host country, and definitely to assure of legal certainty, predictability, regulatory quality and facilitation. So overall अगर हम बात करें इस SDR negotiation का जो purpose था वो ये था कि सर्विस सेक्टर को या सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रॉपर एक्सेस दिया जाए होस्ट कंट्री में, उनको प्रॉपर फैसिलिटेशन दिया जाए इन टर्म्स ऑफ legal certainty, in terms of predictability, in terms of regulatory quality and other administrative procedures. And if you see the WTO history, so since last 2 decades it is
first WTO deal on service sector. So in last over 2 decades, WTO members has not gone for any service related deal. And as per the GATS, that is General Agreement on Trade and Services, the WTO member countries are allowed to determine the extent of market access they will grant in various service sectors, and they can treat the foreign entities providing services differently from their domestic entities. तो बेसिकली सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा लीनियंसी दी गई है मेंबर कंट्रीज़ को कि वो अपने अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस दे सकते हैं, एंड इफ they can treat foreign entities differently than domestic entities. बट जो अब रिसेंटली जो SDR साइन हुआ है सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग it will be now easier for foreign service provider to access, understand and follow the procedural norms for authorization, for licensing, और थोड़ी सी predictability भी बढ़ेगी और legal certainty को भी लेकर के इसमें कई सारे rules and regulation रखे गए हैं नए negotiation में, that is called as service domestic regulation. Almost all government requires the foreign service provider to seek authorization or license from designated authorities as per the General Agreement on Trade in Services. तो इसको लेकर के जो पहले के रूल्स थे उसको लेकर के कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने कंप्लेंट भी करी थी कि हर कंट्री में सर्विस के लाइसेंस को लेकर के, ऑथराइजेशन को लेकर के डिफरेंट नॉर्म्स हैं और कुछ कंट्रीज़ में तो ये प्रोसीजर क्लियर भी नहीं है. कंपनीज डू नॉट हैव एनी आइडिया हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू गेट द लाइसेंस और द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, व्हाई देयर एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड. इसी को लेकर के कई सारे जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज थी उन्होंने कंप्लेन करी थी, जिसके बाद से 67 मेंबर कंट्रीज जो थे वो साथ आए हैं. दे केम टुगेदर and they have signed the SDR and they were also unclear. अगर पहले के गैट्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है, क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर क्या है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी. तो इस पर्टिकुलर SDR में ये सारे जो लूप होल्स हैं उनको दूर करने की बात करी गई है. तो 2017 में जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि सर्विस सेक्टर को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बॉटलनेक्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा, जिससे कि जो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इजी मार्केट एक्सेस हो, सिंप्लीफाइड मार्केट फॉर्म में एक्सेस हो, ऑथराइजेशन, लाइसेंसिंग उनकी ईजी तरीके से या लेस कंप्लाइंसेस बर्डन हो और प्रिडिक्टेबिलिटी हो लीगल इश्यूज़ को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को लेकर के. तो फाइनली जो WTR का नेगोशिएशन था, WTO का जो नेगोशिएशन था इस SDR पर, ये कंक्लूड हो गया है और अप्रॉक्सीमेटली 67 कंट्रीज़ ने इस नेगोशिएशन को कंक्लूड किया. अब देखना है कि इस पर्टिकुलर SDR को कितने कंट्रीज साइन करते हैं और कितने कंट्रीज रेटिफाई करते हैं. So in September 2021, the participating member converged on uniform set of regulatory disciplines set out in a reference paper on SDR. तो probably जल्दी ही ये GATS के शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, जिससे कि थोड़ा सा इजी होगा सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को मार्केट एक्सेस करना एज पर दिस न्यू रेगुलेशन. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. RBI मे वेट एंड वॉच इकोनॉमिस्ट. तो इसे बोल रहे हैं प्री पॉलिसी सर्वे बिजनेस स्टैंडर्ड ने करवाया, जिसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है कि आगे आने वाले टाइम में RBI पॉलिसी रेट्स को, बैंक रेट्स को लेकर के क्या पोस्चर रखेगा, क्या जेस्चर लेगा. क्या RBI पॉलिसी रेट्स को होल्ड करेगा या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि RBI के एक्शन पर आगे आने वाली इकोनॉमिक के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 8 दिसंबर को डिसाइड होने वाली है, या हम बोल सकते हैं MPC की जो मीटिंग होने वाली है 8 दिसंबर को, उसमें RBI क्या डिसीजन लेने वाला है. वेदर RBI विल गो फॉर पॉलिसी रेट कट, RBI विल गो फॉर पॉलिसी रेट इंक्रीज, और RBI विल कंटिन्यू विद द करंट पॉलिसी रेट इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमी. तो अलग अलग जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. हालांकि मैक्सिमम का ये कहना है कि RBI विल वेट एंड वॉच. अभी RBI कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं लाएगी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिकेटर्स में, बैंक रेट्स में, पॉलिसी रेट्स में. अभी फ़िलहाल के लिए RBI जो है वो वेट करेगी कुछ एक क्वार्टर और कि आगे इकोनॉमी किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मूव करती है और जो नया वेरिएंट आया है वो कैसे इंडियन इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है.
हालांकि कुछ का ये भी कहना है कि आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट और मे होल्ड ऑन फॉर रिवर्स रेपो रेट। कुछ का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मोर और लेस यही कहना है सबका कि हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करे, रिवर्स रेपो रेट जो है उसको होल्ड करेगी, रेपो रेट आरबीआई बढ़ा सकती है। सो अगर हम देखें कि मिस्टर भट्टाचार्य जो एक्सिस बैंक के ऑफिशियल हैं, उनका ये कहना है कि ओमिक्रॉन जो है मे होल्ड द रिवर्स रेपो रेट हाइक। अगर ओमिक्रॉन नहीं आया होता तो प्रॉबेबली जो आरबीआई है वो पॉलिसी हाइक पर जाती, पॉलिसी रेट के हाइक पर जाती। लेकिन अब क्योंकि ओमिक्रॉन आया तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ी है। तो अलग अलग जो बैंक के, बंधन बैंक के जो ऑफिशियल है टॉप मैनेजमेंट, उनका ये कहना है कि नो रेपो रेट रिवर्स हाइक। जबकि मिस्टर नारंग जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल है, उनका ये कहना है कि 15 बीपीएस पॉइंट तक का रिवर्स रेपो रेट में हाइक देखने को मिल सकता है, 25 बीपीएस का इन फरवरी। तो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट हाँ, जो एक अगर कंसेंसस निकालने की बात करी जाए तो कंसेंसस ये है कि जो रेपो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाइक पर नहीं जा सकता। While 6 expected a sure hike in reverse repo rate out of 10, but Omicron variant might not allow the RBI to do so. And one among the top 10 said a reserve repo rate hike could be done outside the फॉर्मल पॉलिसी। तो कुछ का कहना कि हो सकता है एमपीसी में डिसीजन ना लिया जाए, बट यस आरबीआई आगे आने वाले टाइम में रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। शार्प राइज इन वैल्यूएबल परचेज पुश्ड अप जीडीपी ग्रोथ इन Q2 owing to their ability to hedge against inflation. People bought gold and precious stones and artwork at a brisk pace during the second quarter, and जिसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है Q2 में वो बहुत ज़्यादा पुश हुआ। सो दिस प्लेड अ क्रूशल पार्ट इन जैकिंग अप द जीडीपी ग्रोथ एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का सीधे सीधा ये कहना है कि अनसर्टनिटी की वजह से, इन्फ्लेशन की अनसर्टनिटी की वजह से, इकोनॉमी की अनसर्टनिटी की वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नाउ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क अगेंस्ट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन और अनसर्टनिटी। और जिसकी वजह से जो सेकेंड क्वार्टर है Q2 में जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली है। अ सेक्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट सेज दैट this indicates the pain the informal economy went through in the quarter, but was masked by the headline GDP growth at 8.4%, जो कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस भी करी थी। तो इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो एक जनरल पैटर्न है कंजप्शन का, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। वैल्यू एडिशन में बहुत ज़्यादा जीडीपी या ये बोले जीवे बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। Q2 में जो ग्रोथ देखने को मिली है इकोनॉमी में, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ट्रेडिंग इन बिजनेस प्रीशियस गोल्ड, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इन गोल्ड, increases investment in gold and precious metals because of the risk of uncertainty. So expenditure on these items was approximately rupees 1.2 trillion, that in comparison to the previous year it is as much as high as 183.28%। तो मैं कह सकते हैं 183% का इंक्रीज देखने को मिला है प्रीशियस मेटल्स में, गोल्ड्स में और आर्ट वर्क में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। सो कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्री कोविड ईयर, अगर उसको प्री कोविड ईयर से कंपेयर करें, दिस इंक्रीजेज अप्रॉक्सीमेटली 170.4%. The growth rate of valuable was higher at 456.13% during the first quarter of financial year 22। तो फाइनेंशियल ईयर 22, जबकि सेकेंड वेव आई थी कोविड की, अगर आपको याद हो तो एंटर ही करने वाले थे उस समय, जो वैल्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट था वो 456% तक बढ़ा था। हाउएवर इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द वेरी लो बेस ऑफ लॉकडाउन इन द Q1। तो ये जो 456% का इंक्रीज दिख रहा है, इसमें लो बेस का इम्पैक्ट भी है। लेकिन यस, अगर प्री कोविड टाइम से कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 170% का इंक्रीज देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएबल्स परचेज, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और जिसका सीधा इम्पैक्ट Q2 की जीडीपी पर दिख रहा है। And without adjusting for inflation, the valuable constitute approximately 3.1%
of GDP in the second quarter of financial year 22, whereas it was 1.3% in the corresponding period of the previous year. तो 3.1% का इंक्रीज और तक का इंक्रीज देखने को मिला है। वैल्यूएबल का जो शेयर है वो जीडीपी में कितना बड़ा है इसके ऊपर। तो जीडीपी में जो शेयर है हम कह सकते हैं वैल्यूएबल्स का या इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग का, स्पेशली Q2 में वो 3.1% रहा, जो कि पिछले सेम पीरियड में पिछले साल Q2 में 1.3% ही था केवल। तो कहीं ना कहीं अगर डेटा देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट एज वेल एज द एनालिस्ट आर राइट बिकॉज ऑफ द purchase of valuables, the GDP in Q2 of this financial year has been pushed. Now let us look into the next clip. Putin arrives today, eye on weapon deals. So President V. Putin visit to New Delhi on Monday as the billions of dollars of Russian weaponry flow into India. तो पुतिन इंडिया आ रहे हैं और उसका बहुत बड़ा जो एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि किसी बड़ी डिफेंस डील को साइन करने के लिए या किसी बड़े अमाउंट की डिफेंस डील को साइन करने के लिए इनकी विजिट हुई है. So eager to draw India into its efforts to contain China, the US may look away this time. तो और S-400 को लेकर के जो इंडिया डिलीवरी करने वाला है उससे अगर उस पर्टिकुलर न्यूज़ के लाइट में या उसमें इसको देखा जाए, क्या है S-400? इट इज़ एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम. इसको लेकर के हालांकि यूएस ने इंडिया को बहुत प्रेशराइज किया था कि इंडिया शुड नॉट बाई दिस पर्टिकुलर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया, दे शुड बाई इट फ्रॉम यूएसए. हालांकि इंडिया इस पर्टिकुलर प्रेशर को सर्वाइव कर गया. इंडिया ने क्लियरली बोला कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है. करेंटली इंडिया इज एट प्रोक्योरमेंट स्टेज ऑफ दिस S-400 एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ये डील जो हुई थी अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन की डील हुई थी. और यही एक S-400 जो है, अगर टर्की को देखा जाए तो नाटो का जो एक मेंबर था उसने भी खरीदा था और उसके बाद यूएसए ने उस पर बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए थे, बहुत सारे प्रोग्राम से उसको बैन कर दिया था. हालांकि अभी हम उस न्यूज़ पे नहीं जा रहे हैं. तो फिलहाल ये जो S-400 का प्रोक्योरमेंट इंडिया करने वाला है, उसके बाद 6 महीनों के बाद से पुतिन की दिस इज़ द फर्स्ट फॉरेन ट्रिप इन नियरली 6 मंथ फॉर द टॉक विद आवर प्राइम मिनिस्टर. और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इस पर्टिकुलर डील में, इस पर्टिकुलर विजिट में बहुत बड़ी वेपन या बहुत सारी वेपन्स डील और साइन हो. हालांकि जो यूएसए का टेक है उस पर बहुत अच्छा नहीं रहेगा. यूएसए इंडिया को एक प्रॉपर अलाई के फॉर्म में देख रहा था, मोर स्पेसिफिकली चाइना को कर्ब करने के लिए. तो यूएसए का स्टांस इस पर्टिकुलर विजिट पर क्या होगा ये अभी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा. इट लुक्स लाइक वॉशिंगटन टर्न अ ब्लाइंड आई फॉर नाउ, since Indian supports in the Asia-Pacific region is extremely important for USA. So for now, USA is not responding anything, but probably yes, in upcoming weeks or in maybe in upcoming months, India may be able to see the reaction of USA. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write down comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.